Hello and good morning. I'm Atujime and you're watching Morning Pulse on Hornbill TV. Bangladesh has urged India to extradite former Prime Minister Sheikh Hasina and former Interior Minister Asaduzaman Khan Kamal after both were sentenced to death for their role in the crackdown against the student uprising last year. Dhaka said New Delhi was obliged to do so under the extradition treaty. Hasina, who fled after violent student protests last year, has been in India since. Meanwhile, MEA has released a statement regarding the recent verdict in Bangladesh and stated, as a close neighbor, India remains committed to the best interest of the people of Bangladesh, including in peace, democracy, inclusion and stability in the country. We will always engage constructively with all stakeholders to that end, reads the statement. Riva Ganguly Das, former Indian High Commissioner to Bangladesh, said the verdict was quite expected because the whole process has been designed in such a way and given the political atmosphere in Bangladesh. Development which has taken place, the ICT, the tribunal has given the verdict, death penalty to former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina. What's your first reaction, ma'am? How do you look at it? Well, I think there was no surprise in the verdict which was given. It was quite expected that, this is the way the verdict will go. Because it was, the whole process has been designed in such a way, and given the political atmosphere in Bangladesh, I think it was quite, there's nothing surprising about the verdict. In fact, if she had not been given this verdict, we would have been a little surprised. Ma'am, what should be India's position in this regard, ma'am, going forward? What would be your advice, or how would you see India taking the position? Look, we have to watch the situation very carefully. You would have seen that since the verdict was announced, two bulldozers have moved in the direction of 32 Dhanmondi, which was where Sheikh Mujibur Rahman was assassinated. Later, it was converted into a museum, and then under this regime, it was brought down, vandalized. So, who are these people who are bringing these bulldozers and trying to flatten 32 Dhanmondi? I think something we will get to know once we get more news from Dhaka. But the situation is extremely precarious because for the last few days, many incidents of violence, arson have been reported. And I think under this situation, we have to watch very carefully what's happening in our neighborhood. Ma'am, what should be India's position in this regard, ma'am, going forward? What would be your advice, or how would you see India taking the position? Look, we have to watch the situation very carefully. You would have seen that since the verdict was announced, two bulldozers have moved in the direction of 32 Dhanmondi, which was where Sheikh Mujibur Rahman was assassinated. Later, it was converted into a museum, and then under this regime, it was brought down, vandalized. So, who are these people who are bringing these bulldozers and trying to flatten 32 Dhanmondi? I think something we will get to know once we get more news from Dhaka. But the situation is extremely precarious because for the last few days, many incidents of violence, arson have been reported. And I think under this situation, we have to watch very carefully what's happening in our neighborhood. Director at Rights and Risk Analyst Group Suhas Chakma also commented on a development and stated that the entire trial was unfair. He said it does not meet the international human rights standards for fair trial. The state has to make every effort to ensure that the accused is present and given the opportunity to be heard, which is a natural right. Chakma also stated that Sheikh Hasina has been accused of 5 crimes in 3 cases where 13 people were killed. None of the perpetrators or any of the accused who really committed the crimes were charged. I think the entire trial is unfair. It doesn't meet the basic international human rights standards for fair trial. And basic standards for fair trial requires that the accused has to be present. And the state has to make all the efforts to make sure that the accused is present. And given the
opportunity of being heard, which is a natural right. So in this particular case, if Sheikh Hasina is wanted in a particular crime or for a particular crime, they had sent a request of extradition to the government of India. So they had the responsibility to follow up that request. If the government of India was not conceding to demands of the government of Bangladesh, then they should have gone to the Supreme Court of Bangladesh saying, we want Sheikh Hasina's extradition because these are the evidences which we have. And if any country which follows the rule of law, they have to follow this system. So if you look at India, for example, we wanted extradition of Abu Salem, and Portugal was very insistent that he should not be given death penalty, and it went to the Portuguese Supreme Court, it went to the European Court of Human Rights, then we finally got him. Same process is being followed with respect to Mehul Choksky. Just because Mehul Choksky is guilty as per the evidence, which is already available with the prosecution, doesn't mean that you can hold a trial and convict him. So those opportunities we are denied by the prosecution in the case of Sheikh Hasina. So the entire trial is actually unfair. And the second point which I want to mention is Sheikh Hasina has been accused of 5 crimes. One relates to use of firearms, helicopters, etc. The second relates to abetment, provocation, etc. And in 3 other cases, with respect to the killing, one in Rangpur, the other one in Ashulia, and the third one in Dhaka, Chankarpur, or something like that. Now, in all these 3 cases where 13 people were killed, whether they are shot dead, burned alive, you have not charged any one of the perpetrators. The police person who had fired, the accused who had burned people, to that. So without prosecuting any of the accused who have really committed the crimes, even up to the Home Minister as well as the Prime Minister of the country. So how fair is that? So if, there was genuine trial, there was genuine conviction, you would have convicted those perpetrators first, then you would have held Sheikh Hasina, Asaduজ্জামান, and all others for abetting the crimes. But here you have not convicted anybody, but you actually have convicted the abettors, that too also with that. I think that's a bit unfair. Odisha has been undertaking tiger census since November 14 and is expected to complete by November 30. Principal Chief Conservator of Forest Wildlife in Odisha, Prem Kumar Jha, said on Monday that more than 8,000 forest staffs are working on this. In Phase 2, camera traps were set up in Satkoisa and Simplibal. It captures a photo of any animal crossing it, stating that the entire process is expected to be completed by February. Jha said around 3,500 cameras have been installed. All tigers have unique stripes. Through that they can be identified. ये टाइगर सेंसस होता है, ऑल इंडिया टाइगर सेंसस होता है, सिर्फ उड़ीसा में नहीं, पूरा कंट्री में हो रहा है। ये हर एक 4 साल में होता है। इसके पहले आपको 2025 से 2021 में हुआ था, इसके पहले फिर 2025 में भी हो रहा है, उसके पहले 2021 में हुआ था, फिर 2017 वैसे हुआ है। तो ये पूरी 1 साल की प्रक्रिया है। इसको 3 फेज़ में किया जाता है। पूरे भारतवर्ष में एक ही समय में उसका होता है। फेज़ 1 में होता है बेसिकली जितने भी हमारा फॉरेस्ट एरिया है वो बीट, उसको में बोलते हैं कि जाके जस्ट आप देख कर आइए, साइंस सर्वे। उसमें कितने हर्बीवर्स कितने हैं, बड़े बड़े हर्बीवर्स कितने हैं। बड़े हर्बीवर्स मतलब उड़ीसा में सिर्फ एक हाथी होता है और एक गौर होता है। और छोटे हर्बीवर्स कितने हैं, उसको एक लाइन ट्रांजिट में बोलते हैं। 2.5 किलोमीटर चल के वो फिक्स होता है। वो जाके फॉरेस्ट बीट जो है गार्ड दोनों साइड देख के कोई जानवर का प्रेजेंस है तो उसको रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्डिंग के लिए भी एक रेडीमेड ऐप है जिसको एमस्ट्राइप्स ऐप बोलते हैं, इकोलॉजिकल ऐप बोलते हैं, जिसको डेवलप किया है WIA ने। उसमें वो डाटा अपलोड किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस जो है हमने स्टार्ट कर दिया है, लगभग नवंबर 14-15 से स्टार्ट हो गया है उड़ीसा में। और नवंबर 30 तक जो है सब जगह हमारे जितने भी बीट हैं, जितने भी रेंज है, सब पूरा 51 डिवीजन है, सब जगह हो गया है। लगभग हमारे इसमें 8,000 से अधिक फॉरेस्ट स्टाफ इसमें लगे हुए हैं, जो कि ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद इमीडिएटली बात जो है ये सिर्फ आपको खाली, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कोई हर्बीवोर है कि नहीं है, कि कोई इवन टाइगर है कि नहीं, जो आपको दिखाई दिया उसी का गिनती करना है। दूसरा चीज़ होगी आपका फेज़ 2, मतलब कैमरा ट्रैप किया जाता है। कैमरा ट्रैप मतलब जहाँ भी हमारा 2 टाइगर रिजर्व हैं, सतकोसिया है, सिमलीपाल है,
उस दोनों एरिया में प्लस सेंचुरी एरिया, पूरा सेंचुरी में एक 2-2 स्क्वायर किलोमीटर का एक ग्रिड होता है। उस ग्रिड में एक कैमरा टैप रखा जाता है, 2 कैमरा रखते हैं। एक कैमरा टैप को हम लोग लगभग 25 दिन, एक बार कैमरा टैप सेट कर जाए तो 25 दिन तक रहता है। तो वो 24 घंटा ऑन रहता है। जब भी कोई टाइगर क्रॉस करे, कि कोई भी जानवर क्रॉस करे, तो उसका उसमें इसकी फ़ोटो आ जाती है। तो ये प्रोसेस हम स्टार्ट कर दिए। हमें आशा है कि हम जनवरी की फरवरी तक पूरा स्टेट कवर कर लेंगे। ये सब डाटा जो है हमको अपलोड करना पड़ता है WII का, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ऐप में उन्होंने डेवलप किया, एमस्टैप्स ऐप, वहाँ पर डेवलप करना पड़ता है। फिर ये उसकी अंतिम तारीख जून 26 तक है। उसके बाद फिर वो अपने कैलकुलेशन करके हमको टाइगर की संख्या बताएंगे। ये इसका यूजुअल प्रोसेस है पूरा सेंटिमेंट। कैमरा ट्रैप में अभी चल रहा है नहीं, अभी जो है सिर्फ साइंस सर्वे चल, साइंस सर्वे ऑनलाइन ट्रांजेक्ट स्टार्ट हुआ है। पिछले महीने सबकी ट्रेनिंग हुई, पूरा हमारे जो 51 डिवीजन है, जितने भी स्टाफ हैं, सबको ट्रेनिंग किया गया है। उड़ीसा की तरफ से जो सिमलीपाल के जो फील्ड निदेशक हैं मिस्टर प्रकाश, उनको नोडल ऑफिसर कहा गया है, तो उनके भी ट्रेनिंग हुई थी। अभी सब लोगों की अभी ट्रेनिंग हुई है करके, अभी लाइन सर्वे और साइंस सर्वे वो चल रहा है अभी। और कैमरा ट्रैप भी कहीं के कुलडीहा में स्टार्ट हो गया है और सतकोसा में भी स्टार्ट हो गया, मतलब कहीं के स्टार्ट हो गया। लास्ट टाइम 28 या कितना थे? जितना भी टाइगर, दोनों टाइगर जो आप पूरे जितने सेंचुरी हैं, प्लस हमारे पास जो लगभग 3500 कैमरा है, सबको लगाया गया है। तो फेज बाय फेज करते हैं, क्योंकि कैमरे में क्या होता है, एक टाइगर की फ़ोटो आ जाती है, तो उस फोटो से क्या होता है, हर एक टाइगर का जो है वो यूनिक स्ट्राइप है। ऐसा नहीं कि एक जो उसकी जो आपने जो देखते हैं लाइन जो होता है वो यूनिक है। तो उससे हम मतलब टाइगर का जो हो सकता है, मान लीजिए एक ही कैमरा में 2 कैमरा टैप में एक ही टाइगर आ जाए, तो उस फोटो को देख के जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो पकड़ लेगा कि एक ही कैमरा है, वो ऐप है। इसलिए इसमें डुप्लीकेट होने से भी कोई दिक्कत नहीं है। कब तक सर खत्म हो जाएगा ये कैमरा टैप? हम सोचते हैं उड़ीसा में जो है जनवरी 31 तक लगभग हम खत्म करेंगे। लास्ट टाइम जो जैसे मैंने कहा कि 2022 में जब टाइगर की संख्या ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट हुआ था, तो उसमें हमको 20 टाइगर मिला था। लेकिन 23-24 में स्टेट गवर्नमेंट ने खुद भी एक सेंसस किया था कैमरा ट्रैप से, उसमें हमको 32 टाइगर मिले थे। सॉरी, उसमें हमको 27 टाइगर मिले थे, 27 टाइगर प्लस 8 एडल्ट थे। लास्ट ईयर भी हमने खुद ही कैमरा टैप किया था, तो हम उसमें 32 टाइगर की संख्या हमको मिली है। लेकिन ऑफिशियली जो ऑल इंडिया टाइगर में था उसमें 20 टाइगर किए थे। जब ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट हमने किया था 2 साल पहले, तो उसमें हमको 27 टाइगर मिले थे हमको। यूनिक टाइगर से। अच्छा, उड़ीसा में जैसे आपको पता है कि जो मैलिस्टिक टाइगर जो होते हैं वो भी मिलते हैं, आधा काला होता है, उसके कुछ स्ट्राइप जो हैं, जैसे नॉर्मली किसी भी टाइगर का आप स्ट्राइप देखिए तो एक येलो रंग का होता है, काले होते हैं। लेकिन जो मेलिस्टिक टाइगर हो गया उसके जो पूरा काला नहीं होता है, लेकिन कुछ स्ट्राइप 40% के ऊपर जो है उसका काले हो जाते हैं। तो ये एक जेनेटिक म्यूटेशन है, नॉन डिसीसिव है, और ये टाइगर के लिए कोई लिथल नहीं है, बट लेकिन वो उड़ीसा में ही मिलते हैं। वो कितने टाइगर से हमारे, जैसे मैंने कहा, यदि आप हमारे फिगर लें 27 टाइगर, तो उसमें से लगभग 18 टाइगर जो है ब्लैक टाइगर है। Former MP and AIUDF President Badruddin Ajmal, speaking on the political scenario ahead of the election, said that after a period of poor health and reduced political activity, he is ready to return to frontline. Expressing solidarity with the family of singer Zubin Garg, Ajmal added that he even wrote a letter to Zubin's wife and also demanded that a medical college or university be established in his name. On Chief Minister Himanda Biswa Sarma's, Ajmal remarked, "The tongue of the CM cannot be controlled. He might have taken the food and salt of Muslim people, which he should not forget. In elections, one may appear angelic, but issues like price hikes cannot be controlled." Looking ahead to the elections, he stated that his party will contest in around 35 seats this time. He also commented on the tragic bus accident in Saudi Arabia's Medina, which claimed the lives of several Indian Umrah pilgrims, mostly from Telangana. मेरी तबीयत खराब थी, आप लोगों को मालूम है। एक्टिव पॉलिटिक्स में मैं 7-10 महीने से नहीं था। आई वॉज इन टोटली बेड रेस्ट। तो हमारी पार्टी के लोग बार गए बॉम्बे, और विधायक गए। अभी इलेक्शन का हाई टाइम है, घर में सोने का टाइम नहीं है। फिर 5 साल सोएंगे, अभी लड़ने का टाइम है। मैदान में 80% अल्हम्दुलिल्लाह में अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है।
बाकी 20% इलेक्शन की हवा खुद ही अच्छा कर देगा। इसलिए आज हमारी पार्टी के लोगों का हमने लोगों को बुलाया, एग्जीक्यूटिव कमेटी को बुलाया। इस 10 दिन में 10 महीने में पार्टी का क्या हाल है नहीं है, एक एक एरिया का एक एक सीट के बारे में हम लोगों ने बात किया और बहुत आशावादी हैं कि हम लोग इस बार लड़ेंगे और पहले से अच्छा फलाफल दिखाएंगे। इसी को पूछ लेने के लिए आज हम लोग आए, आप लोग आए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने अपना जो इशू रखा नंबर 1 जुबिन गार्ग के फैमिली के साथ पूरा सहानुभूति हमारा है। इसके मरने से जैसे पूरी दुनिया दुखी है, हम लोग भी दुखी है। एज ए पार्टी नॉट एज ए इंडिविजुअल भी मैं खुद दुखी हूँ। मेरे पिताजी के साथ बहुत अच्छे उनकी तस्वीरें हैं मेरे साथ। हमेशा मैं फ्लाइट में बॉम्बे के लिए उठता और जुबिन नहीं जाता, बातचीत होती है पूरी 2.5 घंटा। बहरहाल उसके साथ पूरी हमदर्दी है और उसके हमदर्दी में जो कुछ भी वो लोग करेंगे, जुबिन के लिए कुछ करेंगे। यहाँ अगर वो लोग प्रोग्राम लेते हैं, मैंने सबसे पहला खत लिखा जुबिन की वाइफ को और उसमें कुछ सजेशन दिया कि ये करना चाहिए। साल में एक बार दफा जमा होंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, मतलब क्या है? उसके बाद क्या? जुबिन के नाम से एक मैंने डिमांड दिया था कि आसाम के कोई भी एक यूनिवर्सिटी का या मेडिकल कॉलेज का नाम देना चाहिए। दूसरा, उसका एक कोई प्रतिष्ठान ऐसा बनना चाहिए जिसके जरिए से लाखों हजारों बच्चों को जो जुबिन जाति धर्म वर्णों से ऊपर उठकर वो सेवा करता था वो काम करे, गरीबों का सेवा करे, बच्चों को शिक्षा दे, ये सब चीज करे। दूसरा हमारा ये था कि ये उच्छेद हो रहा है और जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब का जुबान जो है वो बेकाबू है, बहुत बेकाबू, अपमानजनक। एक जाति को, एक कौम को इस तरीके से टारगेट करना ठीक नहीं है। और ये वही लोग हैं, आज से 20 साल पहले वो उनके घरों में जाते थे, उनके पेट में आज भी उन घरों का नमक होगा, तो इतना जल्दी नहीं भूलना चाहिए। उनके घरों का पानी भी पिया होगा, तो नमक और पानी को इतना जल्दी नहीं भुलाया जाता। आप पॉलिटिक्स करिए, नो ऑब्जेक्शन। आपका 2 वोट किसी तरीके से बढ़ता है, आपको गाली देने से दे दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन इतना नीचे नहीं जाना चाहिए। स्तर मेंटेन करिए ना, आप बड़े आदमी हैं, अल्लाह ने आपको चीफ मिनिस्टर बनाया, इसलिए वो था हमारा प्राइस हाइक। आज पूरी दुनिया का मसला है, तो हमारा भी समस्या है, हम लोग इसको लेके इलेक्शन में जाएंगे, ओके। और जमीनों का पट्टा जो हमारा डिमांड हमेशा रहा, जमीनों का पट्टा। Following the Rashtriya Janata Dal's loss in Bihar Assembly elections, daughter Rohini Acharya accused brother Tejasvi Yadav of physical and verbal abuse, including mockery of a 2022 kidney donation to their father Lalu Prasad Yadav. Following which, the 4 sisters Rohini, Ragini, Janna and Raj Lakshmi left the family home in Patna to Delhi on November 16. Rohini on Sunday echoed the pain of a woman wronged, alleging that she was humiliated, abused and threatened by her family members. She sparked a firestorm with her explosive social media post explaining the pain of being ostracized, of being made to feel worthless, the burden she carries. Elder brother Tej Pratap Yadav has supported Rohini and announced moral support for the NDA, intensifying the internal power struggle within the party. पिताजी को छोड़ने तक की बात कर दिया, क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जा करके आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तेज प्रताप जी भी, दीदी उनके साथ भी गलत हुआ। दीदी, हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। और जिस तरह की बात वो कर रही है, वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये कहने की नौबत आ रही है कि आत्मसम्मान की बात चर्चा हो रही है, पिताजी को किस तरह से डोनेट किया किडनी, ये सब कहने की नौबत आ गई है। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए
और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा जब तक इतिहास रहेगा। इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का, उन्हें भी अपमानित किया जा रहा है। हमारी बहन का जो अपमान नहीं, ये सुन करके ही बहुत ऐसा विभत्स लग रहा है। अभी जब मैं थोड़ी देर पहले वीडियो देख रहा था, पता नहीं वो सत्य है या क्या है, कि और भी जो लालू जी की बेटियां हैं वो उस आवाज़ से घर से जा रही हैं, लेकिन ये कोई संजय का और कोई रमीज का, ये सब जो नाम आ रहा है, ये उस घर की उस मानसिकता को दिखा रहा है जो कि किसी भी सभ्य परिवार में नहीं हो सकता। तो अगर घर में अपनी बहन बेटी को चप्पल से मारा जा सकता है, तो फिर ये मानसिकता क्या इशारा कर रही है? बिहार के लोग आज हैरान हैं। मैं तो अभी क्या कह सकता हूँ, उनके घर के बात है, लेकिन कानून है, हर कोई को अपने कंप्लेन करने चाहिए। और चाहे घरेलू हिंसा हो या सामाजिक हिंसा हो, इसका सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। शिकायत आने पर आ रहे थे, मारपीट हो रही थी, जो पूरी घटनाक्रम सामने आई है, क्या कहें? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक परिवार के अंदर एक बेटी की इज्जत और प्रतिष्ठा न रखा जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। ये उनके परिवार की बातें पूरे समाज जाने, बिहार जाने, देश जाने, वो भी विकृत रूप में जाने, इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। राजनीति के अलावा भारतीय संस्कृति और संस्कार परिवार में होना चाहिए। वो टूटता बिखरता हुआ और अब तो कहते हैं बिलखता हुआ दिख रहा है मुझे, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उनके घर का मामला है, उनके पार्टी के आंतरिक मामले हैं, लेकिन कोई बाहरी आदमी आकर के उस घर को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। That's all we have for now. Keep watching Ambul TV.